Hello, dear students. I am Garima Miss. Welcome back to my English lecture. After completing 2.3, there is another sky written by Emily Dickinson. Let's move on to the new topic of today, that is 3.3. That 3.3 is a very technical, very innovative writing skill. Today we are going to start 3.3 email. Emails or full form of email is electronic mail. Students, you must be wondering what is email? Email is used for many different purposes, for contacting with friends, for communicating with your officers, any of the firms, any of the companies where you want to apply for the job. Depending on the various purposes, you can see the email writing is used. So, you can send the email and it is differ audience to audience, and you can send, and in a short period of time you will be getting the answer. So through this we can contact with the people all over the world, and of course free of charge. Yes, so email is an effective and essential means of communication in today's scenario, we can see. And when it is used properly, we can say that it is very fast, simple, efficient and accurate way of communicating with the people. So thinking this in mind, let's see what we are going to do today. In this slide it is listed today we are going to learn how to write the email writing. Okay, so first of all we are going to see the introduction of the email writing. Secondly, we are going to see a very important thing, that is the format of writing email writing. Thirdly, we will see the chapter, that is emails, 106 page number, 107 page number and 108 page number, where it is taught us how to write the email writing. We will see the line by line explanation of it. And lastly, one most important thing we are going to do, and that is the example. One example we will take from the brainstorming question, and we will solve the email how to write in exam. So let's get quickly started. So now see introduction of the email writing. I had present the slide for you students to understand properly. Firstly, please see a most important thing. This writing skill is useful for 11th as well as 12th standard. Yes student, in the 12th standard student, email writing आपके portion में writing skill में रहने वाला है. तो हम 11th से ही इसको स्टडी करते हैं, सो दैट 12th में आप और अच्छे से लिख सको. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम इट इज गोइंग टू कम फॉर 4 marks. So in 11th standard onwards only we will start studying, so that it would be useful for our 12th standard board. Is that clear? Now you can see student how it is going to come in exam. आपको एग्जाम में आएगा कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन. एक ईमेल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और यू हैव टू सेंड एन ईमेल टू पर्टिकुलर पर्सन, मे बी द फ्रेंड, फॉर्मल भी रह सकता है और इनफॉर्मल भी रह सकता है. ओके, मे बी द फ्रेंड और प्रिंसिपल, और यू कैन सी एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. तो वो आपका 4 marks का रहेगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जरा देख लो स्टूडेंट, हाउ इट इज गोइंग टू कम. प्लीज सी फॉर 12th स्टैंडर्ड वेरी यूजफुल. कंटेंट पे आपको 2 marks रहेगा. सेकेंडली, यूज ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट, मैं आज प्रॉपर फॉर्मेट आपको सिखाऊंगी, उस पर आपको 1 mark रहेगा. और ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे ना स्टूडेंट 1 mark रहेगा. तो टोटल कितना मार्क्स का हो गया? 4 marks का आपका. यू कैन सी दिस email writing would be. Okay, so ये याद रखना, the email writing would be of 4 marks and this is the marks distribution. नेक्स्ट यू कैन सी स्टूडेंट एनाटॉमी ऑफ अ गुड ईमेल. एक अच्छा ईमेल लिखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? फर्स्टली यू रिक्वायर द गुड सब्जेक्ट लाइन. सेकेंडली ओपनर्स, मतलब जो जैसे ओपनिंग लाइन करते हो वो प्रॉपर होना चाहिए. बॉडी ऑफ द ईमेल शुड बी कंसिस्ट ऑफ 3 पैराग्राफ, जो कि आज मैं सिखाएगी आपको. और लास्ट में क्लोजिंग में सैल्यूटेशन बराबर लिखो, लाइक थैंकिंग यू, ठीक है, योर्स फेथफुली, और पूरा एड्रेस नीचे जो जैसे डालते थे आप लोग, तो वो बराबर लिखने का. तो ये आपका ईमेल हो गया. एक गुड ईमेल लिखने कैसे लिखते हैं. और याद रखो, ईमेल राइटिंग इज जस्ट लाइक लेटर राइटिंग. आपको लेटर राइटिंग पढ़ाई है आपने 10th स्टैंडर्ड में, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल. ठीक है, तो उसको ही आपको ईमेल के फॉर्मेट में डालना है. ईमेल मीन्स लाइक ऑन इंटरनेट यू आर राइटिंग, मे बी आप जीमेल कर रहे हो, याहू के थ्रू आप सेंड मैसेज कर रहे हो, राइटिंग द लेटर, तो उसको कहते हैं ईमेल राइटिंग.
सो एक क्विक रिव्यू देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि ईमेल राइटिंग होता क्या है. सो ईमेल राइटिंग इफ यू वुड सी इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल, ओके, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल कॉमनली यूज्ड सर्विस ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे आप देखोगे हम ये मैक्सिमम आप इंटरनेट पे मैसेजेस ऑन द स्पॉट क्विकली सेंड करने के लिए ये यूज़ करते हो. इससे क्या होता है स्टूडेंट, अलाउज पीपल टू सेंड मैसेजेस. आप भी कम्युनिकेट कर सकते हो, वो पर्सन भी आपको कम्युनिकेट एज यूजुअल कर सकता है. जैसे आप यू आर सेंडिंग द मैसेज, दैट पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू सेंड. ठीक है. नेक्स्ट, टू वन टू मोर रेसिपिएंट्स. इसमें क्या आप एक साथ बहुत सारे लोग को फॉरवर्ड कर सकते हो मैसेजेस. व्हाट्सअप मैसेजेस कैसे आप फॉरवर्ड करते हो, सेम वे ईमेल ऑल्सो यू कैन फॉरवर्ड टू टू और मोर पीपल एट वन पीरियड ऑफ टाइम. Next you can see it is a very important invention, and this invention was done by Ray Tomlinson in the year 1972. So this electronic way of sending the messages, which we all call it as email writing, it is done by none other than Ray Tomlinson in the year 1972. So ये हमारा एक short introduction था. Let's see now the format of writing email. So now you can see you can how to start your answer. एग्जाम में लिखना रहेगा ना, तो ये पॉइंट्स 8 पॉइंट्स अपने दिमाग में स्टोर करके रखो. ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है. मैं फॉर्मेट भी बताऊंगी, पर ये 8 थिंग्स आप स्टोर करके रखो. सबसे पहले आपको ईमेल आईडी लिखना है, ठीक है. सबका ईमेल आईडी है. आई होप सो इन माय क्लास ऑल माय चिल्ड्रन आर हैविंग देयर ओन ईमेल आईडी. जैसे आप कोई भी लिखते हो, richa@gmail.com, ऐसा एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है. तो इस टाइप का आप देखोगे ईमेल आईडी आप लोगों को खुद का सबका क्रिएटेड होगा ऑलरेडी इन योर मोबाइल, ठीक है. तो वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं. आई थिंक माई स्टूडेंट्स आर मोर कैपेबल देन मी. सेकेंडली इफ़ यू वुड सी, रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस वहाँ पे आएगा. टू करके आपको रेसिपिएंट का नेम और एड्रेस आएगा, ठीक है. तो वहाँ पे लाइक किसको सेंड कर रही है, मे बी कोई भी पर्सन है, जैसे नेहा singh@gmail.com, तो फिर उसका ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है. कार्बन सीसी, कार्बन कॉपी भी रहता है, तो वहाँ पे भी फॉरवर्ड किसी और को भी कर रही है, तो उधर भी आप एक और जीमेल या याहू का एड्रेस डाल सकते हो. बीसी मीन्स होता है, बीसीसी मीन्स होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब और एक को आप सेंड कर रहे हो, तो वो भी आपका वहाँ पे ऐड हो सकता है, ठीक है. वो जो कि बीसीसी एंड सीसी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. एग्जाम में याद रखना, ईमेल आईडी आपका लिखना है, टू लिखना है, और फिर डायरेक्टली आपको आ जाने का है सब्जेक्ट पे, ठीक है. सब्जेक्ट इफ यू सी शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. ज़्यादा बड़ा नहीं लिखने का. अभी जैसे किसी को इनविटेशन भेजने का है एनुअल फंक्शन के लिए, तो इनविटेशन फॉर एनुअल डे इवेंट ऐसा आएगा, ठीक है. अभी एनुअल डे इवेंट है, तो दैट सिर्फ मेन थिंग्स लिखना है. इनविटेशन फॉर एनुअल डे इवेंट इन दिस वे. ये आपका सब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट, सैल्यूटेशन. सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में क्या रहता है, याद है आपको लेटर में कैसे लिखते थे, रिस्पेक्टेड, ठीक है, डियर, मिस्टर, मिस, ठीक है, ऐसे करके रिस्पेक्टेड सर, मैडम, और डियर सर, मिस्टर, मिस, ऐसे करके आपको लिखने का है, ठीक है. नेक्स्ट, अब बॉडी ऑफ द लेटर. कितने पैराग्राफ ईमेल में बनाना है, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ. 3 पैराग्राफ तो एटलीस्ट आपको बनाने का ही है, ठीक है. और लास्ट में कंप्लीट होने के बाद क्या लिखने का रहता है, सैल्यूटेशन. मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सैल्यूटेशन से खत्म होता है, लाइक थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और जो एड्रेस है जिसको लिखा है आपने, वो नीचे डाउन में आ जाएगा. अब स्टूडेंट देखो, बॉडी ऑफ द ईमेल मतलब 3 पैराग्राफ जो लिखोगे ना, 3 paragraphs that you are going to write, what are the content that you are going to put in the 3 paragraph that we are going to see now. So in the content section, if you would see in the first para, reason of writing an email, and of course the student, you should be clear and direct. Whatever you are writing now, that should be very clear and precise. मतलब proper लिखो, mistakes नहीं रहना चाहिए, grammatical error नहीं होना चाहिए, and whatever you want to speak out, that should be lucid, एकदम clear. शॉर्ट में क्लियर ऐसा रहना चाहिए. घुमा फिरा के सेंटेंस नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा सेंटेंसेस नहीं, सिंपल शॉर्ट में टू द डायरेक्ट थिंग्स यू शुड बी राइटिंग द रीजन, क्यों लिखा. सेकेंड पैराग्राफ में, जो कि बोलते हैं मिडिल ऑफ द पैराग्राफ. मिडिल ऑफ द पैराग्राफ डिस्क्राइब व्हाट यू हैव टू ऑफर द
पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ओके, मतलब तुमने जो तुम बोलने चाह रहे हो, वाई यू वॉन्ट टू स्पीक आउट, तो वो थोड़ा तुमको डिस्क्राइब करने का है, ठीक है। मे बी यू आर इन्वाइटिंग टू समवन फॉर एनुअल डे फंक्शन, सो एनुअल डे कैसा होने वाला है एक क्विक शॉर्ट में बताओ उनको। इफ़ राइटिंग फॉर हेल्प देन व्हाट टाइप ऑफ असिस्टेंट, अगर किसी को हेल्प के लिए लेटर लिखा है, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा लाइक फीस के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो तुमने फीस के लिए प्रॉब्लम हुआ करके ऐसा एक लेटर ईमेल डाला प्रिंसिपल सर को कि मैं फ़ीस अभी नहीं दे पाएगा बिकॉज ऑफ द कोविड-19 एंड ऑल दैट। तो वो लिखने के लिए प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करो कि दैट माय फादर मदर फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो वो एक आप एक्सप्लेन करके मिडिल ऑफ द पैराग्राफ में रीज़न एक्सप्लेन करके लिखने का है। लास्ट थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूडिंग कि और आई वुड गिव माई फीस नेक्स्ट मंथ फुल्ली आई विल गिव, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। या किसी को इनवाइट करने का है आपको एनुअल डे फंक्शन में या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को भी, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो ये आपका लास्ट में आएगा, सेम लाइक लेटर राइटिंग। तो ये 3 पैराग्राफ आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप का आ सकता है ईमेल राइटिंग में, तो आपको ऐसा 3 पैराग्राफ बना के लिखने का है। नाउ यू कैन सी इन दिस स्लाइड स्टूडेंट फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग कैसे लिखने का है। सबसे पहले देखो आपको ऐसा एक बॉक्स बनाना रहेगा, सब दिख रहा है आपको एक बॉक्स, ओके। साइड में आपको इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट, थ्रैश, मोर लेबल्स ऐसा करके ये 5 चीज़ बाय हार्ट रखो, ठीक है। इनबॉक्स में 2 5 ऐसे मैसेजेस करके ब्रैकेट में लिख सकते हो। आप अपना भी ईमेल देख ओपन करके देखोगे तो ऐसे ही रहता है। मिडिल में अब जो लाइन है उसमें देखो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू जो लिख रही है, ठीक है। हुसोएवर इज राइटिंग, जैसे यहाँ पे hinakoster@gmail.com है तो उसका एड्रेस आ गया। सीसी कार्बन कॉपी किसको लिख रहे हो वो वहाँ पे आएगा। बीसीसी भी है कोई तो वो आएगा उधर, ठीक है। अब सब्जेक्ट पे आ जाओ, क्या सब्जेक्ट है आपका, बहुत कुछ सब्जेक्ट हो सकता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देगी, आपका टेक्स्ट बुक में आप देखो एनुअल डे इनविटेशन का है तो इनविटेशन फॉर द एनुअल डे इवेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकता है। सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर मैडम, हाँ अगर आप देखोगे एनुअल डे है मतलब कि देख के समझ गया कि फॉर्मल है तो रिस्पेक्टेड सर मैडम आएगा, ठीक है। अब उसके बाद बॉडी ऑफ द ईमेल, कितने पैराग्राफ बोला है मैंने, 3 पैराग्राफ, एटलीस्ट यू हैव टू राइट द 3 पैराग्राफ। लास्ट में थैंक यू सो मच और होपिंग फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स और योर्स फेथफुली एक्स, जो भी अभी ऑफकोर्स अगर एग्जाम में एड्रेस दिया है तो वो वहाँ पे आएगा, नहीं दिया है तो XYZ आएगा। इज दैट क्लियर? बट मस्ट रिमेंबर ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू कम इन योर लेफ्ट हैंड साइड, पूरा एक लेफ्ट हैंड साइड में आने वाला है, ठीक है। तो सब चीज़ आपका लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरीके से आपको फॉर्मेट है ऑफ ईमेल राइटिंग। नाउ कम टू द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 106। Here student we are going to see the full line by line explanation of email writing. So we will quickly see so that we can understand. Firstly, what is an email? ईमेल अब भी सिखाया आपको, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑल्सो नोन एज ईमेल और ई मेल, ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं प्रोनाउंस। इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे ये भरपूर हम सबसे ज़्यादा ईमेल यूज़ करते हैं। अलाउइंग पीपल टू फाइंड मैसेजेस टू वन और मोर रेसिपिएंट, आप एक से ज़्यादा लोगों को ऑन द स्पॉट मैसेज सेंड कर सकते हो और उसका रिप्लाई भी आपको ऑन द स्पॉट आ सकता है। सो इट्स अ वेरी क्विक वे ऑफ सेंडिंग द मैसेजेस। email was invented by Ray Tomlinson in the year 1972। 1972 में रे टॉमिन्सन ने इसको इन्वेंट किया था, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। सो दिस वॉज व्हाट इज एन ईमेल। नाउ कम टू व्हाई वी यूज ईमेल। नेक्स्ट इज वाई यूज ईमेल। ईमेल का ज़रूरत कदर पड़ता है अपने को। द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बिहाइंड ईमेल इज रिलेटिवली सिंपल विच हैज़ क्विकली मेड इट द मोस्ट पॉपुलर सर्विस यूज्ड ऑन द इंटरनेट। आप देखोगे ये बहुत ईजी वे है इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने का और मैसेजेस सेंड करने का। इट्स लाइक लेटर फॉर्म, आप कैसे ओल्ड टाइम में देखो हम लेटर्स सेंड करते थे और पर बहुत टाइम लगता था उसका आंसर आने में, बट ईमेल में आप क्या है, आप देखोगे क्विकली आप मैसेज सेंड भी कर सकते हो और आपको रिप्लाई भी बहुत जल्दी मिल जाता है। सो एज विद अ ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस फॉर योर मैसेज टू रीच योर रेसिपिएंट, ऑल यू नीड टू नो इज देयर एड्रेस।
एक टाइम था जब आप ओल्ड टाइम में हम पोस्टल सर्विस यूज़ करते थे, जब हम पोस्ट कार्ड और लेटर्स लिखते थे पोस्ट कार्ड पे और फिर उनको मिलता था, फिर उनसे रिप्लाई आने में कितना टाइम लगता था, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू कम। और याद है पोस्ट कार्ड पे मीन्स आपके पेरेंट्स में भी राइटिंग और वो उसके ऊपर वो एड्रेस वगैरह लिखते थे, तो वो चीज़ सेम आपको अब इलेक्ट्रॉनिक वे, दैट इज ईमेल के थ्रू इंटरनेट पे लिखना है वही चीज़, ठीक है। सो इट्स टू मेन एडवांटेजेस ओवर पेपर मेल। पेपर मेल से अच्छा आप देखोगे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है इसका एडवांटेज। फर्स्ट है तो स्पीड, जल्दी से आप देखोगे सेंड हो जाता है मैसेज और उनको पहुंच भी जाता है और रिप्लाई बहुत जल्दी से हो जाता है। सो ईमेल इज सेंट प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियसली, मीन्स प्रैक्टिकली इंस्टेंट ऑन द स्पॉट सेंड होता है मैसेज और रिप्लाई भी आ जाता है। एंड द लोअर कॉस्ट मीन्स इंटरनेट पे कितना खर्चा होता है आजकल, तो सब लोग डेटा पैक यूज़ करते हैं, तो वेरी लेस इफ़ यू वुड सी दैट दिस इज़ यूज्ड। ओके, सो इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन। जो इंटरनेट कनेक्शन आप डेटा पैक भरवाते हो उसमें ही आप सारा काम ईमेल का कर सकते हो वेरी इजीली। सो बहुत सस्ता भी है, वेरी चीपर एंड वेरी इफेक्टिव कि आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैसेजेस यू कैन कम्युनिकेट। That's more. Email can be used to instantaneously send a message to several people at once. आप एक साथ बहुत सारे लोगों को भी मैसेजेस सेंड कर सकते हो। सो इट्स अ क्विक वे ऑफ इन्फॉर्मिंग द पीपल, कम्युनिकेटिंग विद द पीपल एंड गेटिंग द इंफॉर्मेशन। उधर से भी मैसेज आ सकता है। सो email is the best way nowadays we can say. So it is the need of the hour to learn how to write the email. नेक्स्ट यू कैन सी ईमेल बेसिक्स। अब हम थोड़ा बेसिक पे आते हैं कि क्या क्या चीज़ ईमेल में ज़रूरी है। जब आप इंटरनेट पे ईमेल लिख रहे हो तो क्या चीज़ बेसिक है, देखो क्या लिखा है। मेक श्योर दैट योर ईमेल्स स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ द कंटेंट एंड नॉट बिकॉज ऑफ द स्लोपी मिस्टेक्स, पुअर फॉर्मेटिंग और कैजुअल लैंग्वेज। याद रखो आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, व्हाट यू आर राइटिंग। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट बराबर लिखो, जैसे प्रॉपरली किसी को इनवाइट करना तो इनविटेशन फॉर एनुअल डे और एनुअल स्पोर्ट्स डे। सेम वे बॉडी ऑफ द लेटर भी एकदम बराबर लिखो। आपका जो ईमेल है वो सामने वाले को रीड करने में आपका मिस्टेक्स नहीं मिलना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं आना चाहिए। फॉर्मेट सही लिखो, जैसे कि एक ही लाइन लिख के थोड़ा सा छोड़ दिया तो मतलब ये रॉन्ग फॉर्मेट है। 3 पैराग्राफ मैंने बोला है, सब्जेक्ट बोला है, तो ये सारे थिंग्स लिखो। कैजुअल लैंग्वेज भी आप ऐसा मत यूज़ करो कि सामने वाले को समझ में ना आए। सो द लैंग्वेज, द स्पेलिंग एंड द वे ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी प्रॉपर। Next, use a readable font in a 10 to 12 point size in your email. Send job search related emails from a professional email address. Ideally, your email address should be just include some combination of your first and the last or first initial and the last name. अभी आप देखो यहाँ पे क्या बोला है, फॉन्ट साइज़ जो नेट पे टाइपिंग के लिए यूज़ कर रहे हो वो बिग साइज़ का नहीं होना चाहिए, 10 to 12 पॉइंट का जो साइज़ रहता है वही रखने का है। एड्रेस जो ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हो वो बराबर उसी इंसान को जाए, वही एड्रेस टाइप करो, कोई और एड्रेस पे मत सेंड कर दो किसी और को ईमेल। जिसको सेंड करना है उसको ही सेंड करने का है, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी और एक चीज़, जो ईमेल एड्रेस लास्ट में लिखते हो, नेम, ठीक है। नेम मैंने बोला है लास्ट में लिखने का, अगर दिया है तो लिखने का ही पड़ेगा, तो वहाँ पे आप लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही लिखने का, पूरा मम्मी पापा का नेम उधर नहीं डालने का है। तो ये थिंग्स याद रखो। नेक्स्ट पैरा, हियर इज व्हाट टू इंक्लूड व्हेन सेंडिंग जॉब search correspondence and the email message format you should use when you are sending employment related email messages. और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मैसेजेस अगर आप सेंड कर रहे हो तो आप याद रखो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही सेंड करने का है, ठीक है। सो जैसे उस प्रॉपर फॉर्मेट मतलब एनक्लोजर, जैसे अपना CV वगैरह भी, बायोडाटा भी आपको उसके साथ लगाने का है, तो वो वहाँ पे मेंशन करो कि एनक्लोजर में मैं यहाँ पे CV या बायोडाटा सेंड कर रही हूँ, तो ये आपका वहाँ पर आएगा। नेक्स्ट इज ईमेल मैसेज टेम्पलेट। इसमें क्या बोला है देखो, द फॉलोइंग ईमेल मैसेज टेम्पलेट लिस्ट द इंफॉर्मेशन यू नीड टू इंक्लूड इन एन email messages. You should, while searching for a job, use the template as a guideline to create the customized email messages to send to the employers and connection. अभी जैसे जॉब के लिए आपको अप्लाई करने का है तो वो टाइम पे आप याद रखो, जो भी जॉब के लिए आप सर्च के लिए या किसी प्लेस पे आपको एप्लीकेशन डालने का है, तो जो फॉर्मेट है
वही यूज़ करो। और जो टेम्पलेट्स कुछ कुछ टेम्पलेट्स देखो उसमें अवेलेबल रहते हैं, तो वो आप अगर यूज़ भी करते हो तो बराबर से यूज़ करो। मे बी श्योर कि वो कस्टमाइज प्रॉपरली यूज़ करो, या तो तुमको जो कुछ लिखने का है वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट इन अ प्रॉपर वे, ओके, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तुम कनेक्ट करो टू द पर्सन हु इज़ गिविंग यू द एम्प्लॉयमेंट, और द पर्सन हु इज़ गिविंग यू द एम्प्लॉयमेंट, तुमको जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उससे तुम कनेक्ट बराबर कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन सी, अब आ गया सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन देखो क्या बोला है, डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन इन योर ईमेल। ईमेल में बराबर से, मैंने बार बार बोल रही हूँ, सब्जेक्ट बराबर लिखो, अट्रैक्टिव रहना चाहिए सब्जेक्ट, कि पढ़ के समझे कि हाँ ईमेल किसके ऊपर है। ठीक है, यूज द सब्जेक्ट लाइन टू समराइज व्हाई यू आर ईमेलिंग, सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लाइन। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन का कुछ एग्जांपल्स भी दिया है, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, अगर एनुअल डे के लिए इन्वाइट करना है तो इन्विटेशन फॉर एनुअल डे इवेंट, बस इतना लिखने का है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कुछ एग्जांपल है, जैसे एप्लीकेशन फॉर मार्केटिंग एसोसिएट जेन स्मिथ। जेन स्मिथ को तुमने एप्लीकेशन डाला है, तुमको मार्केटिंग में जॉब चाहिए। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन इंटरव्यू रिक्वेस्ट, अगर किसी से किसी के यहाँ इंटरव्यू का के लिए जाने का है तो इंफॉर्मेशन इंटरव्यू रिक्वेस्ट, मतलब कभी ये क्या है उसका इंफॉर्मेशन दो। अभी जैसे रेफर्ड बाय लास्ट में लिखते हो, पर्सन नेम, ठीक है, लास्ट में जो लिखोगे सैल्यूटेशन में, वो भी देखो एकदम प्रॉपर रहना चाहिए। तो सब्जेक्ट जो लाइन है ना एकदम बराबर यूज़ करो। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन आप देखोगे थैंक यू, मतलब लास्ट में लिखते हो ना थैंकिंग यू, तो उसमें भी बराबर से लिखने का है। तो सैल्यूटेशन बराबर रहना चाहिए। सैल्यूटेशन, यूज़ ऑफ एन अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन यूज़ करना है। डियर, मिस्टर, मिस, लास्ट नेम, डियर हायरिंग मैनेजर, ऐसे करके। अभी देखो आप लोग के लिए स्टूडेंट मैंने एक सब्जेक्ट सैल्यूटेशन का एक स्लाइड प्रिपेयर किया है, सो दैट माय डियर स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड मोर प्रॉपरली। ईमेल में देखो लास्ट में साइन ऑफ के टाइम, मतलब सैल्यूटेशन में आप क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। थैंक्स, ठीक है, चीयर्स, थैंक्स, बेस्ट, रिगार्ड्स, सिंसियरली, टेक केयर, थैंक यू सो मच, चीयर्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, रिस्पेक्टिवली, टॉक सून, सिंसियरली योर्स, ऐसे करके आप लास्ट में सैल्यूटेशन, लास्ट वाला मैं बता रही हूँ, स्टार्टिंग वाला नहीं। स्टार्टिंग में तो मालूम है सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर मैडम, डियर मिस्टर एंड मिस, ऐसे करके आएगा जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। लास्ट वाला मैं बोल रही हूँ जो साइन ऑफ लास्ट में करते हो, साइन ऑफ में, उसमें आप ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखने का आपको, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर ईमेल शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन व्हाई यू आर राइटिंग। ठीक है, क्यों लिखा, you should be very clear and direct, and if you are applying for a job, mention the job title। अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो लिखो कौन से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो। इफ़ यू वांट एन इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू, इंटरव्यू के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टेट दैट योर ओपनिंग सेंटेंस, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो कि तुम क्या बोलना चाहते हो, दैट शुड बी इन योर राइटिंग। सेकेंड पैराग्राफ आपका मिडिल ऑफ द पैराग्राफ जिसको कहते हैं, वो उसमें क्या लिखने का, इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर ईमेल मैसेज शुड डिस्क्राइब व्हाट यू हैव टू ऑफर द एम्प्लॉयर, और इफ यू आर राइटिंग टू आस्क फॉर हेल्प, व्हाट टाइप ऑफ असिस्टेंट यू आर सीकिंग, मतलब तुमको कुछ हेल्प चाहिए या तुमको कुछ वर्क है, या एनुअल डे का फंक्शन है, या फिर यू कैन सी यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब, वॉट एवर इट इज़, और तुमको कोई कंसेशन चाहिए, तो जो भी चाहिए आप उसमें डिटेल में मिडिल ऑफ द पैराग्राफ में आप लिख सकते हो, पर डिटेल इतना नहीं कि 10 पेज का लिख दिया। 3 to 4 लाइन्स मैक्स टू मैक्स। कीप इट कंसाइज, शॉर्ट में लिखना, फ्लॉलेस विथ रेलेवेंट पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन बराबर यूज करना। ठीक है, फ्री में कहीं पे भी कॉमा सेमीकोलन डाल के मत बैठो। ठीक है, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, यू शुड नो। सो फर्स्ट पैरा एटलीस्ट आपका 4 to 5 लाइन का होना चाहिए। सेकेंड पैरा अगेन आपका 6 to 7 ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना, और लास्ट फाइनल पैराग्राफ पे आप लोग आ जाओ, कंक्लूड होगा। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपको थैंकिंग दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर और फॉर कंसिडरिंग यू फॉर द पोजीशन, और योर कनेक्शन फॉर हेल्पिंग विद द जॉब सर्च। जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये सारे लाइन्स आप लिख सकते हो, उसको थैंक्स बोलने का है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप कोई को इनवाइट कर रहे हो तो आपको लिखने का है लुकिंग फॉर यू सून इन द फंक्शन। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फेवरेबल रिस्पॉन्स, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कोई वर्क के लिए, तो इस तरीके से आप लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन्स आपको लिखने का है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 लाइन्स का रहेगा। सो इस तरीके से आपका पूरा हो जाता है। लास्ट में ईमेल सिग्नेचर रहता है। ईमेल सिग्नेचर में क्या लिखने का है, जरा ध्यान से सुनो। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिर्फ आएगा,
ठीक है, जो पर्सन लिख रहा है उसका, ठीक है। नेक्स्ट इज उसका ईमेल एड्रेस वहाँ पर आता है, नेक्स्ट इज उसका फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा बन के आपका तैयार होता है क्या, दिस इज व्हाट ईमेल राइटिंग, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ हाउ टू सीसी एंड बीसीसी प्रॉपरली, ये आपका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको स्किप भी करते हो, छोड़ भी देते हो, नहीं लिख याद रहता है तो इस पे मार्क्स आपका कट नहीं होगा, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो बट स्टिल मैं पर हाँ, ईमेल जब आप इंटरनेट पे लिखते हो तो ये ज़रूर आता है सीसी और बीसीसी, तो हम नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। द कार्बन कॉपी सीसीसी एंड ब्लाइंड सीसीसी, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी टूल्स आर वेरी ट्रिकी, ओके, समटाइम्स दे आर यूजफुल। ये मतलब फॉरवर्डिंग द मैसेजेस, मतलब फॉरवर्ड करने के लिए जब आप मैसेज चाहोगे तो वहाँ पे आपको दूसरे लोगों का ईमेल एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। दे आर यूजफुल, बट इफ़ यू यूज्ड इम्प्रॉपरली, अगर आप गलत वे में यूज़ करते हो या जिसको सेंड करना उसको ना सेंड करके किसी और को सेंड कर दिया, जो भी हुआ, सो दिस कैन बी प्रॉब्लमेटिक, मस्ट रिमेंबर। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फॉर्मेट है वो ध्यान रखो, क्योंकि बोर्ड में आपको ईमेल राइटिंग लिखने को आएगा। नाउ यू कैन सी ऑन पेज नंबर 108 आपको एक फॉर्मेट दिया है, कैन यू प्लीज रीड द फॉलोइंग सैम्पल ईमेल फॉर्मेट एंड प्रिपेयर योर ओन सैम्पल ईमेल फॉर्मेट। आपको खुद से बनाने का, अब देखो कैसे बना के दिया है, सेम वैसे ही आपको बनाने का भी है, ठीक है। साइड में मैंने बताया था इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट, थ्रैश, मोर लेबल्स, इतना आपको कंपोज करके लिखने का है। उसके बाद आपको 2 लाइन्स मारने का है। पहले 2 में रोहिणी या रोहित, जिसको भी लिख रहे हो, चोपड़ा पूरा नाम लिखो, मतलब पूरा मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सब्जेक्ट क्या है, इन्विटेशन फॉर एनुअल डे इवेंट। नेक्स्ट क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा एंड थर्ड पैरा, 3 पैराग्राफ लिखना है। देखो कितना प्रॉपरली लिखा है, सब चीज़ आपका लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। We would like to tell you how much we admire your work on screen and how much we appreciate as you person off screen. The recognition and popularity you have received is very well deserved. You are a youth icon in the true sense. ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ में हो गया। आपको इनवाइट करने का है किसी को, तो आपको पहले उसके बारे में प्रॉपरली बताने का है। नेक्स्ट, वी देयरफॉर इनवाइट योर ग्रेशियस प्रेजेंस। अब तुम उसको एज ए चीफ गेस्ट बुला रहे हो, तो उसको बताओ दैट यू आर माई चीफ गेस्ट फॉर माई फंक्शन, एनुअल फंक्शन MEGH 19 शेड्यूल्ड ऑन फ्राइडे December 20th ऑन आवर कॉलेज ग्राउंड। यहाँ पर होने वाला है, यू हैव टू कम। I am sure your presence will inspire our young students, many of whom, that is the third paragraph में लास्ट में लिखने का है, whom look forward to acting as a career in their future। तो इस तरीके से आपका 3 पैराग्राफ शॉर्ट, प्रिसाइज और प्रॉपरली लिखने का है। लास्ट में प्लीज़ फाइंड अटैच्ड द इनविटेशन कार्ड, ठीक है। अगर एनक्लोजर है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा इसके साथ। नेट पे देखो, आप ईमेल सेंड करते हो तो आप एनक्लोजर भी सेंड करते हो उसके साथ, तो PDF रहता है या फिर जो भी आप एनक्लोजर डाला। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स, ये लास्ट में ज़रूर लिखना, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स और रिप्लाई। लास्ट में क्या सिखाया अभी, थैंकिंग यू, जैसे लेटर में लिखते थे, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तुम्हारा आएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल इनवाइट कर रहा है तो प्रिंसिपल और वो कॉलेज का एड्रेस पूरा लिखने का है। तो इस तरीके से आपका होगा ईमेल राइटिंग। और लास्ट में बॉक्स कंप्लीट करने का, पूरा बॉक्स एक बना के, एक बॉक्स में ये सब रहेगा, ठीक है। मार्जिन बराबर बना के लिखो, ठीक है। नेक्स्ट 108 पेज नंबर पे आ जाओ। और एक दिया है देखो, कैन यू प्लीज सी, सेम इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड, थ्रैश, ठीक है। और सब ऑफकोर्स 2 कौन है, रोहित चोपड़ा और उसका gmail.com, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, री इन्विटेशन फॉर एनुअल डे इवेंट, ओके। अब देखो हियर व्हाट हियर इट हैज़ बीन सेड दैट सेम सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड मैडम सर, ठीक है। आई रिसीव द, अभी जिसको दिया ये इनविटेशन उसने रिसीव कर लिया, अब रिसीव करने के बाद उसको रिप्लाई भी करने का है। तो देखो रिप्लाई में ये क्या कर रहा है, मतलब ये दोनों बराबर तुमको सिखाया है टेक्स्ट बुक में कि किसी को सेंड किया ईमेल एंड किससे रिप्लाई लिया, तो ये बोथ इट हैज़ बीन सेड। अभी अगर मैंने किसी स्टूडेंट को अभी एक सेंड किया ईमेल तो उसका रिप्लाई भी आएगा, तो वो रिप्लाई वाला ईमेल भी आप देख लो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। पर एग्जाम में आपको सेंट वाला ही आता है मैक्सिमम, ठीक है। रिप्लाई वाला भी आया तो हम सीख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई हैव रिसीव्ड, तुमको इनवाइट किया तो तुम लिखो
बॉडी ऑफ द लेटर में फर्स्ट पैराग्राफ में, आई रिसीव्ड द इन्विटेशन लेटर आस्किंग मी टू बी द फर्स्ट फॉर द चीफ गेस्ट फॉर MEGH19 which is scheduled on Friday 20th December. Second paragraph में, I want to thank you for your kind words. I am indeed very happy to inform you that I will remain present for the event. तो इस तरीके से आप लिखो कि that I am going to come in the event. I am very grateful that you called me. लास्ट में, I look forward to seeing you very soon. ठीक है, इस तरीके से लास्ट में आएगा. थैंकिंग यू लिखना मत भूलना. योर्स फेथफुली, अब तुम लिख रहे हो तो तुम्हारा नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और आएगा. ठीक है, और नीचे आप लिख सकते हो आर्टिस्ट और डांस कोरियोग्राफर जो भी है, आप लिख के लास्ट में डाल सकते हो. अपना पोस्ट भी लिख सकते हो. तो इस तरीके से सेंड किया ईमेल और रिसीव किया ईमेल, बोथ हियर इट हैज़ बीन गिवन ऑन द पेज नंबर 108. अब आप आ जाओ स्टूडेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन पे. ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन, अब आप आ जाओ स्टूडेंट 109 पेज नंबर पे. वहाँ पे आप देखो बायोडेटा रिज्यूम दिया. आई थिंक मेरे क्लास में सब बच्चों को समझता है रिज्यूम, CV, बायोडेटा. ठीक है, रिज्यूम आप देखोगे अपने बारे में लिखने का मतलब सब, हु आर यू, नेम, योर एम्प्लॉयमेंट, योर एजुकेशन, योर अदर करिकुलर एक्टिविटीज़. तो वो तो मेरे को लगता है सबको आता होगा. करिकुलम विटाई मतलब CV मतलब कोई भी जॉब के लिए जाते हो तो CV पूछता है. मतलब आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पर्सनल डिटेल्स, देन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन एक्सपीरियंस, तो वो होता है CV. कोई भी जॉब के लिए आप जाते हो तो वो अप्लाई करना रहता है. बायोडाटा आपको मालूम ही होगा, सबको बायोडाटा बनाने आता है. नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर you can having the activities you had done, तो you can write. तो इस तरीके से आपका ये 3 पैराग्राफ मैं इतना फोकस नहीं करती क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. मैंने जस्ट समरी दे दिया, आप रीड कर लो, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट. हाँ, अब आ जाओ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन पे. एक्टिविटी 1, हम पहला एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं एग्जाम में कैसे पूछेगा और कैसे करते. Now you can see student, activity 1 brainstorming question is very important from the examination point of view because हमको सीखना है कि हमको एग्जाम में कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा और आंसर कैसा देने का है. सो राइट एन ईमेल. एक्टिविटी 1 पे ज़रा ध्यान दो, पेज नंबर 109. राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड हु हैज़ नॉट कॉन्टेक्टेड यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. यूज द हिंट्स लैंग्वेज सपोर्ट फ्रॉम द टेक्स्ट टू कंपोज योर ईमेल. ईमेल जैसे टेक्स्ट बुक में हमको सिखाया है वैसे ही लिखने का है. और किसको लिखने का? अपने फ्रेंड को लिखने का है. मतलब इनफॉर्मल है, समझ में आया? फ्रेंड को लिख रहा है मतलब इनफॉर्मल है. प्रिंसिपल वगैरह को लिख रहा रहेगा, इंस्टीट्यूशन तो फॉर्मल हो जाएगा. अभी ये इनफॉर्मल है. इनफॉर्मल है क्योंकि फ्रेंड को लिख रहा है, तो फ्रेंड को लिखने का जो फ्रेंड तुमसे कॉन्टैक्ट में नहीं है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो ईमेल में अभी आपको एक सिखाने वाली हूँ कैसे एग्जाम में लिखने का है. उससे पहले मैं आपके सामने एक स्लाइड प्रेजेंट कर रही हूँ वेयर द फॉर्मेट इज गिवन. फ्रॉम और टू आपको मालूम होना चाहिए. 2 ईमेल आईडी आपको वहाँ पे पुटअप करना है. ठीक है, फ्रॉम मतलब तुम्हारा ईमेल आईडी वहाँ पे आएगा. ठीक है, तुम्हारा ईमेल आईडी सेंडर मतलब तुम सेंड कर रहे हो ना ईमेल, तो तुम्हारा ईमेल आईडी वहाँ पे लगेगा. ठीक है, टू किसको सेंड कर रहे हो? तुम्हारा फ्रेंड का यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा. ठीक है, ऊपर तुम्हारा ईमेल आईडी आएगा फ्रॉम में. टू में किसका आएगा? तुम्हारा फ्रेंड का ईमेल आईडी इधर पे आएगा रिसीवर में, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है. ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखने का है. सब्जेक्ट शुड बी अप्रोप्रिएट. ओके, एकदम टू द पॉइंट रहना चाहिए. उसका नीचे आपको सैल्यूटेशन डालने का है, रिस्पेक्टेड. ठीक है, और फॉर्मल रहेगा तो रिस्पेक्टेड सर मैडम, और इनफॉर्मल है तो डियर योर फ्रेंड नेम वुड कम, डियर तारा, डियर जो भी है. ठीक है, उसका नाम वहाँ पर आएगा. उसके बाद आपको एक लाइन लीव करने का है. उसके बाद आपको 3 पैराग्राफ में लिखने का है. फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस, वाई यू आर राइटिंग दैट ईमेल टू योर फ्रेंड और हुसोएवर इट इज़. जिसको भी लिख रहे हो क्या पर्पस है राइटिंग का. सेकेंडली, मिडिल ऑफ द पैराग्राफ. मिडिल ऑफ द पैराग्राफ में क्या लिखना है? डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज, वाई यू आर राइटिंग, क्यों लिख रहे हो, क्या मेन रीज़न है, वो आएगा डिस्क्रिप्शन में. थर्ड में आएगा फाइनल पैराग्राफ. फाइनल पैराग्राफ में क्या? थैंक्स, कंक्लूजन, और इनवाइट कर रहे हो तो वहाँ पे वो लाइन सब लिखो. होपिंग फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स, अगर प्रिंसिपल को कुछ रिक्वेस्ट भेजा है तो. फ्रेंड है तो होप्स टू मीट यू सून, वेरी सून, ऐसा करके आप लोग लास्ट में लिखने का है. कंक्लूड विथ थैंक्स. हाँ, अभी थैंक्स गिविंग वर्ड्स भी आप लोगों को सिखाए थे मैंने अभी, कि इन द एंड ऑफ द यू कैन सी
एंडिंग में व्हाट आर द वर्ड्स यू हैव टू यूज़। उसके बाद आपको ईमेल सिग्नेचर, जो आपका ईमेल है दैट इट विल कम, दैट इज़ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो आएगा, आपका ईमेल एड्रेस आएगा, आपका आएगा, फ़ोन नंबर है तो दैट यू कैन राइट, और अटैचमेंट, अगर फॉर एग्जांपल मैरिज के लिए इनवाइट कर रहे हो तो मैरिज का यू कैन अटैच, अगर फॉर एग्जांपल अपना फ्रेंड का पिकनिक का पिक्चर्स अपलोड किया तो वो पिक्चर्स यू कैन अपलोड, so you can write add so many things। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो फिर अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो, जॉब के लिए लिख रहे हो तो रिज्यूम अटैचमेंट या सीवी अटैचमेंट, बायोडाटा अटैचमेंट कर सकते हो, तो वो लिखने का उधर। तो ये ऐसा आपका ईमेल फॉर्मेट है। अब आप आंसर देखो कैसे आपको लिखने का है। आंसर में आप देख सकते हो, बोला भी था एक साइड लाइन में मार्जिन में इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड, ट्रैश करके मोर लेबल्स करके डालने का है। उसके बाद इस साइड आ जाओ, अब सब चीज़ लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। टू जिसको लिख रहे हो दैट इज़ तारा खन्ना 30@yahoo.com, ये आपका फ्रेंड का ईमेल आईडी लिखने का है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट, एकदम टू द पॉइंट, रिकनेक्टिंग विथ एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, बहुत साल बाद मिल रहे हो तो रिकनेक्टिंग विथ योर ओल्ड फ्रेंड, विथ एन ओल्ड फ्रेंड ऐसा आएगा। नेक्स्ट सैल्यूटेशन, फ्रेंड है तो डियर तारा, ठीक है, एक लाइन लीव करके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखने का है। होप यू आर डूइंग वेल and are happy with your new life and a new job in a new city. Since you moved to New Delhi for work, we have had no long conversation like before. Also, I miss our group study sessions, cafeteria, conversation and the fun that we had during the cultural event in college. तो आप फ्रेंड के साथ जो भी इवेंट स्पेंड किया टाइम दैट यू कैन रिमेंबर। स्कूल डेज का फ्रेंड है तो यू कैन राइट कि दैट यू वेंट, अभी कितना फ्रेंड तुम्हारा दूर हो गया तो उसके ऊपर आप उसको ईमेल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो कि वॉट एवर द डेज वॉज देयर, इट वॉज बेस्ट डेज दैट वी स्पेंड टुगेदर। सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखने का है, मेन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो आई होप वी स्पेयर, दैट इज वी स्पेंड मीन्स सम टाइम फ्रॉम आवर बिजी शेड्यूल। अब तुम बताओ रीज़न क्यों क्या है कि तुम उसका साथ यू कैन स्पेंड सम टाइम विथ योर फ्रेंड, तो अपना बिजी शेड्यूल से उसको बोलो तारा को कि तुम अपना बिजी शेड्यूल से मेरा टाइम कुछ टाइम निकालो सो दैट वी कैन स्पेंड टुगेदर एंड गेट अ चांस टू स्पेंड अ वीकेंड टुगेदर। अगर टाइम है तो वी विल कम टुगेदर एंड वी विल हैव अ गुड फन, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। एज अ रिजल्ट वी डिड गेट एम्पल टाइम टू चैट एंड कैच अप ऑन ईच अदर्स लाइफ। इस तरीके से वी कैन बी कनेक्टेड विथ ईच अदर। इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी टू renew our bonds all over again. So it's the best way that we can be connected with each other. So kindly keep me posted about your visit to your hometown so that we could plan this meetup. So आप बोलो उसको कि whenever you are coming back to the hometown or if you are there, tell me, I will also come and we will have a good fun. So इस तरीके से आपको दो पैराग्राफ कंप्लीट करना है। लास्ट पैराग्राफ में बताया आप लोगों को कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ वेयर यू आर सेइंग थैंक्स, ओके, होपिंग फॉर द मीट सून, ठीक है, तो लिख सकते हो मेक टेक केयर एंड कीप इन टच, आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून। तो इस तरीके से आपका लास्ट पैरा कर एक दो लाइन में कंक्लूड करने का है। एक लाइन लीव करके, बिकॉज ये इनफॉर्मल है तो क्या आएगा, योर्स लविंगली, समझ में आया। और अगर फॉर्मल रहता तो क्या आता, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ठीक है। ये इनफॉर्मल है तो क्या आएगा, योर्स लविंगली। अभी तुम्हारा नाम इधर लगेगा, दैट इज दृष्टि जोशी, जो भी है, ठीक है। और इस तरीके से वो लाइन क्लोज करने का। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट है आपका फॉर राइटिंग द ईमेल। अगर आप इस तरीके का फॉर्मेट यूज करते हो देन ओनली वी कैन होप फॉर 3.5 और 4 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये आप ध्यान से करो। और इसके अलावा मैं और एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो राइट वन फॉर्मल ईमेल, write a formal email and invite your mentor for inauguration of your office। आपका जो है mentor है, मे बी योर टीचर, मे बी योर whosoever it is, क्लासेस के सर या क्लासेस की मैडम, जो भी है आपका मेंटर जो आपको सिखाया पढ़ाया, आपका ऑफिस इनैगोरेट हो रहा है तो आप उसको बुला सकते हो आप
फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ योर ऑफिस। तो वो कैसे लिखने का है आप लोगों को मालूम है आप लोग को, ठीक है। तो ट्राई टू राइट बाय योर ओन, अदरवाइज मैंने आंसर के लिए आपको एक और फॉर्मल भी दे दिया, एक इनफॉर्मल का एग्जाम्पल दे दिया और अब फॉर्मल का भी एग्जाम्पल दे दी हूँ। सेम वे इनबॉक्स में ऐसा ब्रैकेट में 3 करके डाल सकते हो, 3 मेल्स मतलब ड्राफ्ट, सेंड, थ्रैश, मोर लेबल्स। ये साइड में आपको कंपोज में ऊपर कंपोज हेडिंग डाल के लिखने का है। अब ये साइड आ जाओ, ये साइड का बॉक्स में स्टार्टिंग में 2, ठीक है, 2 जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस आएगा। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत सिंपल एंड प्रॉपर होना चाहिए। क्या है, इनविटेशन है, ठीक है। सो इनविटेशन फॉर एन इनॉग्रेशन इवेंट, इनॉग्रेशन इवेंट है उसके लिए तुम इनवाइट कर रहे हो, तो मैंने बोला है सब्जेक्ट शॉर्ट एंड प्रिसाइज शुड बी देयर। सो इनविटेशन फॉर एन इनॉग्रेशन इवेंट होने के बाद एक लाइन लीव करके यू कैन राइट रिस्पेक्टेड सर और डियर सर ऑल्सो यू कैन राइट इन, यू कैन यूज द डियर ऑल्सो। सो कॉमा डाल के नेक्स्ट लाइन से एक लाइन लीव करके आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखने का है, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ द मिरेज इज अ कंपनी नेम, अ टेक्निकल कंसल्टेंसी फर्म बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, ठीक है। बेस्ड है एक टेक्निकल कंसल्टेंसी, एक फॉर्म दैट इज कंपनी का नाम है मिरेज, वो मुंबई बेस्ड स्टार्ट हो रहा है। दिस फॉर्म इज माई ब्रेन चाइल्ड, और ये मेरा दिमाग का है कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। एंड इनॉग्रेशन डेट इज सेट फॉर अक्टूबर 20 अक्टूबर 2000, वहाँ पे 2021 डाल सकते हो, ठीक है। फुल स्टॉप डाल के आप वहाँ से नेक्स्ट पैरा भी कर सकते हो, ठीक है। इसने 2 पैराग्राफ में ही शो किया, बट आई विल से कि 3 पैराग्राफ हमको बोला है, तो हम योर ब्लेसिंग्स से कैन राइट द सेकेंड पैराग्राफ। योर ब्लेसिंग्स एंड विशेस हैव इनकम्पेरेबल इंपॉर्टेंस इन माई अचीवमेंट, हेंस आई हम्बली इनवाइट यू फॉर दिस ओकेजन। सो ये ओकेजन पे तुम्हारे मेंटर और तुम अपने टीचर को हम्बली विथ अ वेरी हैप्पी हार्ट यू कैन इनवाइट हिम और हर। योर ग्रेशियस, यहाँ पे पूरा है मतलब कि सर है, ठीक है। योर ग्रेशियस प्रेजेंस विल बी इनवैल्यूएबल टू योर सक्सेस, मीन्स इफ यू वुड बी प्रेजेंट ओवर देयर इट वुड बी लाइक आई वॉन्ट एवरीथिंग। सो ऐसे करके आप सेकेंड पैरा बना सकते हो। थर्ड पैरा में लास्ट में मैंने बताया है अटैचमेंट क्या करने वाले हो, उसके साथ थैंक्स भी लिखने का है। तो हियर विथ आई हैव अटैच्ड अ फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड, ओके, ऑफ द इवेंट अलॉन्ग विद द वेन्यू डिटेल्स, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू to kindly view the attachment and bless us with your presence. आप request करो that please see the attachment also where I had given the card of inauguration, and wherever the it is, that is a venue before time, please be there and bless us on this occasion. So in this way आप request कर सकते हो in the 3 paragraph properly it is given to your mentor to invite on the inauguration function of the office. एक लाइन लीव करके थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ठीक है, और थैंकिंग यू कर सकते हो, योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो, ठीक है। पर ये आप ऐसे थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी लिख सकते हो, और ये मैंने जो वर्ड्स दिए थे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स, याद है वो स्लाइड, वो वर्ड्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बिकॉज दिस इज़ द फॉर्मल, तो आपको थैंक्स, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली लिखना है। यहाँ पे आप लिखते भी हो तो करेक्ट, ठीक है। सुमित चोपड़ा और जो अपना कंपनी का नाम है जैसे मिरेज टेक्निकल कंसल्टेंसी, आप यहाँ पे डाल के लास्ट में कंप्लीट करके लाइन बनाने का है, लास्ट में मीन्स वो एंड हो गया। तो इस तरीके से आपको फॉर्मल वे में लिखने का है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मल ईमेल। फॉर्मल ईमेल भी दे दिया, इनफॉर्मल ईमेल भी दे दिया। Now I hope that if it comes in exam, my students can able to write. आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं दे देती हूँ, सो दैट आप लोग वेन एवर द कॉलेज विल रीओपन आई एम गोइंग टू चेक इट, ओके। सो राइट वन, write an email to your friend and share the experience of your recent trek to Himalayas. तुम हिमालयाज पे रिसेंट ट्रैक पे गए थे, तो वापस आके तुम अपने फ्रेंड को ईमेल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो कि तुम ईमेल यहाँ गए थे, हिमालय गए थे और ट्रैकिंग किया तुमने, तो कैसा एक्सपीरियंस था, दैट information you have to share to your friends. तो वो कैसे लिखना है, I hope you can able to write. Okay, so write by yourself. Whenever the college will reopen, I am going to check it as homework. So one homework I am giving you which I require in your notebook. Is that clear? Write in your notebook. नोटबुक सबने बनाया होगा, रजिस्टर, आई होप
ठीक है, दो बोला था नोटबुक बनाने के लिए, सो प्लीज राइट इन दैट नोटबुक. सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड ऑफ कोर्स एंड ऑफ दिस chapter also, that is 3.3 writing skill, email writing. I hope all had understood the format of writing, basic format of writing the email writing. It is just like the letter writing. पर letter writing में हम लोग ये सब कंपोज इनबॉक्स ड्राफ्ट्स वगैरह नहीं लिखते थे, बट यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे आप और एक चीज़ देखोगे, हम लोग ईमेल एड्रेस नहीं लिखते थे लेटर राइटिंग में, पर यहाँ पे ईमेल राइटिंग में हम लोगों को ईमेल एड्रेस लिखने का है. ठीक है, और नॉर्मल फॉर्मेट तो ऑलमोस्ट सेम. तो ये सब ध्यान में रखते हुए आई विल कंप्लीट माय लेक्चर टुडे, and in the next lecture we will start with the next chapter. Till then, read the my lecture very properly, understand it, and try to solve one homework question by yourself, and enjoy learning. This is Garima signing off. Stay home, stay safe.